Okay. So today we will talk about the relation between the energy and the momentum. And this question can also become in this form also. So that E square equals to m naught square C4 plus P square C square. And E is equals to under root m naught square C4 plus P square C square. तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में या तो इस तरीके से आएगा कि derive the relation between the energy and the momentum, और आपको ये प्रूफ करने के लिए आ सकता है. तो आप इसके डेरिवेशन को देखेंगे किस तरीके से हम इसको प्रूफ करेंगे, और इसके दो मेथड मैं आपको बताऊंगा. यू कैन चूज एनीवन. फर्स्ट जो हमने रिलेशंस अभी तक डेराइव किए हैं उन्हीं रिलेशंस को यूज करते हुए हम एक रिलेशनशिप बिल्डअप करेंगे बिटवीन द एनर्जी एंड मोमेंटम. तो फर्स्टली यू नो इन द लास्ट लेक्चर वी हैव सीन energy mass by the energy mass equivalence relation E is equals to mc square. So let's say equation number 1. Now you already know the concept of variation of mass with velocity. So the relation is m is equals to m naught upon under root 1 minus v square over c square. Now what I am going to do is I am putting the value of this m in the equation first from the equation 2, because you can see this expression, there is a term of m naught and p square and c square. So to make this mathematics simpler, I am just putting this value of m from equation 2 to equation 1. Just put it here. So we will get this expression m naught c square upon under root 1 minus v square upon c square. Now what I am going to do, just simplified it. So what we will do, just take the square of both sides, or you can say squaring of both sides. So what you will get, E square is equals to m naught square C4 upon 1 minus V square upon C square. Now you can see this expression. You have already got the left side. Now in the right side you have already got this expression. But what you need, what is the remaining? Remaining is p square and c square. So I will transform this velocity in terms of momentum. So you know the relation. What is the relation between the velocity and the momentum? This is the formula for the momentum. P is equals to mv. So you can calculate the velocity. V is equals to p upon m. Now I am going to put the value of v in terms of p. So what we will get, just see here, this will be E square is equals to m naught square C4 upon 1 minus, we are replacing V by P upon M, so this will be P square upon M square, because here is a square, so this will be M square and c square also in the numerator, so you will write m square c square. अब आप देखिए कि अब इसको मुझे थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करना है. अब मुझे यहाँ p आपके पास टर्म आ गया, अब आपको c स्क्वायर और चाहिए. तो c स्क्वायर के लिए क्या करूंगा, आई विल मल्टीप्लाई c स्क्वायर इन दी न्यूमरेटर एंड द मल्टीप्लाई c स्क्वायर इन दी डिनोमिनेटर. मतलब c स्क्वायर का मल्टीप्लाई हमने न्यूमरेटर में भी कर दिया और c स्क्वायर का मल्टीप्लाई हमने डिनोमिनेटर में भी कर दिया. उससे दो काम होंगे, एक तो हमारा ये पी स्क्वायर सी स्क्वायर की फॉर्म आ जाएगी, सेकेंडली ये जो फॉर्म है ये अभी एम स्क्वायर सी स्क्वायर है, ये हो जाएगा एम स्क्वायर सी फोर. सो दैट विल बी द स्क्वायर ऑफ एनर्जी. इक्वेशन 1 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर सी फोर. सो दैट बिकम्स द फॉर्म ऑफ एनर्जी. सो यू कैन राइट इन टर्म्स ऑफ एनर्जी. सो सिंपली व्हाट यू विल गेट, this E square is equals to m naught square C4 is divided by 1 minus P square C square, that will be m square C4. Now you can write this expression square of E, E square, simply from first. So simply this expression becomes E square is equals to m naught square C4 is divided by 1 minus P square C square upon, we are writing this E square, you will write from first
ये हमने किससे लिखा है, पहली इक्वेशन से हमने कंडीशन को जो है लिखा है. नाउ सी हियर, जस्ट सॉल्व इट. सो दिस विल बी ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू m naught square c4 upon, take the LCM, so this will be e square minus p square c square. Upon में LCM में e square होगा, so this e square will go up, so this will be in the numerator, so that will be e square here. So now you can see that you can cancel some things from here. This e square and this e square will be cancelled out. So finally what you will get, 1 will be remaining here. Just cross multiplication, what we will get, 1 here, 1 upon 1, just cross multiplication, what you will get, e square minus p square c square equals to m naught square c4. अब आप देख रहे होंगे रिजल्ट आ गया, इस p स्क्वायर को इधर ले आइए, तो सिंपली e स्क्वायर इज इक्वल्स टू m naught square c4 प्लस p स्क्वायर c स्क्वायर. स्क्वायर रूट ले लीजिए तो सिंपली आपके पास आ जाएगा e इज इक्वल्स टू अंडर रूट m नॉट स्क्वायर c4 प्लस p स्क्वायर c स्क्वायर. ये हमारा जो है रिजल्ट हमारे पास आ गया. अब मैं दूसरे मेथड से इस एग्जांपल को आपको बताऊंगा कि सेकंड मेथड से कैसे करेंगे. वो भी सिंपली हम फॉर्मूला के यूज करके ही करेंगे. तो देखिए, आप जो चाहे वो मेथड यूज कर सकते हैं. यू कैन चूज दिस मेथड और यू कैन चूज द अदर मेथड विच आई एम गोइंग टू derive. मैं इन इक्वेशंस को नहीं मिटा रहा हूं क्योंकि मुझे इन दोनों इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी. सो आई विल स्टार्ट विद द सेम. बी हैव, ये हम जानते हैं या ये हमारे पास है. तो अब हम सेकंड इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे. हम सेकंड इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे. फ्रॉम द सेकंड इक्वेशन, जस्ट स्क्वायरिंग ऑफ द बोथ साइड. आप स्क्वायर करिए दोनों साइड्स का, आपके पास क्या आ जाएगा, सिंपली यू विल गेट m स्क्वायर इज इक्वल्स टू m नॉट स्क्वायर. इसको आप मेथड 2 कर लीजिए. ये मैं सेम चीज को दूसरे मेथड से मैं आपको बता रहा हूं. तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. इसको बस सिंप्लीफाई कर लीजिए एज वी हैव डन इन द एनर्जी मास इक्विवेलेंस रिलेशन में. जिस इक्वेशन को जैसे सिंप्लीफाई किया था सेम उसी वे में इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं. देन व्हाट वी विल गेट, देखिए सिंपली m स्क्वायर इज इक्वल्स टू m नॉट स्क्वायर. एलसीएम लेंगे यहां पे, सो दिस विल बी c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर. अब अपॉन में जो c स्क्वायर होगा दैट विल बी गो अप, सो दिस विल बी m नॉट स्क्वायर c स्क्वायर. आपके पास ये इक्वेशन आ गई. अपॉन 1, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर आपके पास क्या आ जाएगा, यू विल गेट यहां से m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इज इक्वल्स टू m नॉट स्क्वायर c स्क्वायर. जस्ट मल्टीप्लाइड इट. m नॉट स्क्वायर c स्क्वायर माइनस m स्क्वायर v स्क्वायर. ये आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया और आपकी ये इक्वेशन सिंप्लीफिकेशन हो गया. अब आप क्या करेंगे, अब आप देखिए, आपको कुछ चीजें आप यहां से कन्वर्ट करनी है. अब आपके पास टर्म आपको चाहिए एक m नॉट स्क्वायर c4, बट आपके पास है m नॉट स्क्वायर c स्क्वायर. तो मैं इसमें एक काम करूं, अगर मैं इसमें दोनों साइड, इफ आई मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई c स्क्वायर, दोनों साइड मैंने क्या किया, c स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दिया. मतलब दोनों साइड मैंने क्या किया, c स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दिया. कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन पे. जब इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो व्हाट वी विल गेट, c. दिस बिकम्स, जस्ट ओपन दिस ब्रैकेट, m स्क्वायर c4 माइनस m स्क्वायर v स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल्स टू m नॉट स्क्वायर c4. देखिए आपके पास ये वाला टर्म आ चुका है. अब यहां से देखिए, ये जो mb है, मैंने लास्ट आपको फर्स्ट टॉपिक में बताया भी था कि P इक्वल्स टू होता है आपका mv. तो यहां से इस mv को आप लिख सकते हैं p स्क्वायर. सो सिंपली ये p स्क्वायर हो जाएगा. और आप दूसरा टर्म ये देखिए, m स्क्वायर c4 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, m c स्क्वायर, e की वैल्यू है m c स्क्वायर.
इसको मैं सिंपली लिख सकता हूं एम सी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस इसको लिख सकता हूं एम वी का होल स्क्वायर और आपका लिख सकता हूं एम नॉट स्क्वायर सी फोर। फ्रॉम फर्स्ट आप ई की वैल्यू रख सकते हैं, तो दिस बिकम्स ई स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा पी स्क्वायर और यहाँ एक आपका सी स्क्वायर और हो गया, यू कैन राइट सी स्क्वायर। ये सी स्क्वायर और छूट रहा था, इसको आपने स्क्वायर में लिख लिया। सो दिस बिकम्स पी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल्स टू एम नॉट स्क्वायर सी फोर। नाउ इसको इधर ले आइए, आपके पास आपका रिजल्ट जो है आ गया। देखिए ये थोड़ा सा मेथड छोटा है और कोई इतना मुश्किल, थोड़ा सा लॉन्ग मेथड था, ये थोड़ा सा छोटा मेथड है जिससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास रिजल्ट जो है निकल के आ गया। अगर आप स्क्वायर रूट लेके दे देंगे तो दूसरा रिजल्ट भी आपके पास आ जाएगा। सो नाउ यू कैन चूज एनी मेथड टू डू दिस, टू डिराइव दिस एक्सप्रेशन। आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं।